सबको लेफ्ट राइट साइड में प्रेजेंटर लेआउट दिख रहे हैं? Ma'am, once I'll on the share button, then after it will come. Yes. Click on the share button. You will see the share panel, a full panel. Okay. Everyone Madam, just click on there are only two options: share and link to this slide. share button. Share button in your Zoom. Click on the share button. Okay. Share open, then please upload your presentation to share it. Share is not highlighting. Sorry, ma'am. Here you will get shared. I have to go, ma'am, because of there is one emergency patient, sir, ma'am. Okay, okay, no worries, Veena ji. Okay. Today is practice session. Thank you so much. So you will go through recordings also. Okay. Yeah. Madam, my slide is visible. My slide is visible to you. No, no, nothing is shared now. Presenter layout. And big content only over the shoulder, side by side. So I just shared one video in the group. Oh, it's not a video. Okay. Here a picture. You can see the share button on the screen. Right? Go to our practice group, DMP 18 Technical. So this group is for our practice. Whatever we learn, we practice and we can share in this group, okay? Visible, the share button. And when you click, this kind of panel open. Ma'am, can I send you the picture what my screen is showing right now? No one is sharing nothing right now, okay? Okay. So once I will the share button, the screen is showing like what your screen is showing. That is the same things. Okay. Yeah. So entire. Are you getting share button or not? Tell me first thing. Yeah, I'm getting, ma'am, but it's not highlighting. It's like I'm getting two buttons like share and cancel. Click on share button. Okay. I'm clicking, but you have to select someone. What? You have to select someone like entire screen. Then you have to click share. Entire screen first. Okay, show me your screen first. So whatever you want to share, I want to ask a question, ma'am. Yes, yes, Archana. I want to ask a question. So why we have to install WhatsApp web? Because when you create link on Zoom, no, your class link, so you can directly share those link, copy and paste through WhatsApp. Okay. How you share that link in your WhatsApp group for your session, for your workshop. That's why. And whatever content or important documents shared in WhatsApp group, na, you need to save those. So directly open in your laptop and directly save. Okay, that's why we need WhatsApp in our laptop. Microsoft Edge tab, window and entire screen. Then after two options saying share and cancel. Pratibha, you want to share your PPT? Yes, ma'am, but I So didn't first upload. open your PPT, dear. Open your PowerPoint, okay, in your desktop, and then come here, Zoom, then share button, then you can see that PPT. Whatever you want to share, first open that, then only it will show on your share screen. Clear? Clear. Okay. So everyone please download WhatsApp web. And everyone know how to create group in WhatsApp?
सबको ग्रुप Yes, ma'am, बनाना I आता है? know. Yes, yes. What about Naved, Sony, Pratibha? Yes, ma'am. I know. ओके, क्योंकि जैसे हमारे क्लासेस के Ma'am, लिए there is a पर्सनल ग्रुप्स options है ना हमारे पास. यस यस अर्चना. when we install na, ma'am, there is a option WhatsApp and WhatsApp beta. यस व्हाट्सएप बेटा. Okay. So, ma'am, for this, I have to download the app first. For WhatsApp, yes, Yes. you need to download WhatsApp, even Zoom app. If you Okay. don't go every time on through browser, so it's better to have app. Sure. And many features when you uh, purchase Zoom, no, then you will get like host tools and these things you will get after if you are using paid version of Zoom. But for now and for initial days, no need to buy anything. Just work with the free version. Okay. When you will start your paid session, after that you need to buy your Zoom also and whatever you the thing required. Okay, but initially it's not necessary. And don't worry, we will sit for another separate session for our Zoom where we will learn how to make link, how to decorate, how to share, how to make breakout rooms, each and everything. Today we will discuss on PPT, how to share these things, and why you don't so you don't know how to uh, put this background, how to No, ma'am. select background. Naved? Ma'am, when I downloaded WhatsApp, then automatically Opera downloaded. No, just okay, okay. No worries. See, so Pratibha, Yes. so when you make presentation for your workshop, no, so your first slide should be your introduction slide. Okay, so where you start your name written, like I'm just quickly show you few slides, so you will get idea. Suppose, okay. So when I take workshop, no, so this is my PPT for my workshop. So this is my introduction page. Okay, this way. So what kind of content I am delivering, according to that I choose this title, and this is some introduction part of mine, and then this way I will start. Okay, whatever content I need to share. This is one thing. And when you prepare your PPT for your classes, then suppose you are taking your session on EDMs, then your PPT should look like this. Many EDMs, you can add directly pictures. So this is your topic, first page. Then what idioms about food. So this is simple a picture. If I click remove this, so this is simple a picture. You can download from Google. Okay. Crop it. How to crop pictures? If you don't want extra part, just click. When you click, you will get picture formats. Okay, picture format. You can see that picture format here. Yeah, click on picture format. Then on the ribbon, we call it ribbon, right? Crop option. Just simply click on crop and you can cut extra pieces from your picture. Suppose you don't want this, just click share and adjust. This way you can make, if you want to write something, these all are pictures, but when you want to write something
you are teaching the idiom couch potato. Take one picture of couch potato from Google. Simple, right? Insert. How to insert this picture? Click on insert, right? My screen is visible, right? Everyone? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Click on insert, go picture. This device means you have already saved some picture in your system. You can generate through AI images, stock images, and online images. It depends on you. Whenever you save some picture from Google, so in some drive, आपके पीसी में कहीं एक ड्राइव है, उसमें आपने शेयर किया, तो always go this drive. Okay, you can simply click and choose Okay. wherever you save that picture. Okay, and click, so you will get this picture, whatever picture you want to, and add text, insert, add text, so you will get box like this. Okay, just click and drag and you can type whatever you want to type. And here just let me change the color so it's visible. This way you can type your text whatever you want to type. So about this you can give the meaning. Then if you want to add some example, you can write example. This way you make your PPT. This is one example. Okay, and this is a sample PPTs, and today we will work on our animation and transition also. We have one option of animation and transition. This PPT I prepare for my leader. So here you can see easily one logo here, right? So this is our team's name logo I put here, and one IDQ logo, and I give public speaking and fluent English skill as a title. Yes, Pratibha. IDQ का ये जो लोगो है मैम, एवरी स्लाइड के साथ ये रहना चाहिए, वो डिपेंड करता है कि यस वो आप रख सकते हो, नहीं तो आपके इंट्रोडक्शन स्लाइड में भी आप वो लगा सकते हो. वो थोड़ा सा अच्छा लगता है प्रोफेशनल की यू आर प्रेजेंटिंग योर that was I. या ऑर्गेनाइजेशन. या सो ये सारे पिक्चर्स आपको मिल जाएंगे. आपको चाहिए ये लोगो, आपको कोई भी ऐसे पिक्चर चाहिए होते हैं, यू कैन आस्क मी और योर कोचेस. ओके, किसी से भी आपको ये प्रोवाइड हो जाएगा. और देखिए मैंने ये कैसा बनाया था कि उसके बाद नेक्स्ट मुझे बताना था कि मेरे कंटेंट में की कम्युनिकेशन टेक्निक फॉर सक्सेस. ओके, सो आई हैव मेनी की कम्युनिकेशन, और मैं चाहती थी कि वो सारी चीजें, लेट मी स्लाइड शो दिस, कि सारी चीजें एक साथ आए. सपोज आई हैव मेनी पॉइंट्स. ओके, सो मैंने इसमें एक ट्रांजिशन यूज किया है. व्हेन आई क्लिक, सो ऐसा सारे पॉइंट्स खुल जाएंगे. सो दिस इज अ ट्रांजिशन. सो वो आपके में एक विजन होना चाहिए कि आप कैसा देखना चाहते हैं. आपको अगर सिंपली चाहिए तो जैसे कि नवेद ने बनाया था, 4 बॉक्सेस यूज किए थे और उसमें 4 और 5 पॉइंट्स उसने ऐड किए थे, उस तरीके से भी आप बना सकते हैं. ओके, दिस वे यू कैन ऑल्सो डू. फिर नेक्स्ट आपको मुझे ये बताना है कि प्रिपरेशन एंड कंटेंट. नाउ इसके अंदर भी सब पॉइंट्स मुझे दिखाने हैं, तो यू कैन यूज लाइक दिस. सो कितना अट्रैक्टिव आप बना सकते हैं अपना प्रेजेंटेशन, इट्स ऑन यू. ओके, सो इस तरीके से. अब इसका बैकग्राउंड ऐसा क्यों चूज किया, तो वो आपको सोचना पड़ेगा. नो योर ऑडियंस, यहाँ पे क्या टाइटल दिया मैंने, नो योर ऑडियंस. सो मैंने एक सेलेक्ट किया, एक पिक्चर ऐसा सर्च किया गूगल करके. उसके बाद मैंने सिंपल ये क्वेश्चन मार्क का एक इमोजी ऐड कर दिया उसमें. सिंपल, मुझे जो कंटेंट चाहिए था मैंने वो कंटेंट लिख दिया, और ये बैकग्राउंड में एज अ बैकग्राउंड मैंने ये सेट कर दिया है. अब यहाँ पे क्या लिखा है, क्लैरिटी ऑफ पर्पस. सो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन चूज पिक्चर, राइट. एंड व्हाट्स योर कंटेंट, आप क्या बोलना चाहते हैं. इफ थोड़े शब्दों में अगर आप ऐड करना चाहते हैं, यू कैन ऐड सिंपली दिस वे. सो जो भी आपका स्लाइड है उसके अकॉर्डिंग आप एक पिक्चर लगा सकते हो, कंटेंट लिख सकते हो. टाइम मैनेजमेंट, यहाँ पे मैंने एक आर ग्लास यूज कर दिया कि टाइम मैनेजमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट टाइम मैनेजमेंट. ओके, कॉन्फिडेंस, व्हेन आई टॉक अबाउट कॉन्फिडेंस, व्हाट इज कॉन्फिडेंस मैंने एक लाइन में लिख दिया है, और एक कंपैरिजन वाला पिक्चर ऐड कर दिया है, जिससे लोगों को विजुअल भी हो कि ये बंदा जो है वो नर्वस दिख रहा है और ये बंदा कॉन्फिडेंस लग रहा है, कॉन्फिडेंट लग रहा है.
Yes. right? So this way Yes. you can use some comparison picture also, कि आपको हर चीज थ्योरी में नहीं लिखनी है। तो इस तरीके से अब फ्लुएंसी इन इंग्लिश हम क्या बोलते हैं, वॉट एवर कम्स इन अवर माइंड वी कैन कैपेबल टू एक्सप्रेस दोस आइडिया क्लियरली। सो दिस पिक्चर इज सिंपली सो, जो भी उसके माइंड में था वो क्लियरली वो बोल पा रहा है। सो दिस वे यू कैन फाइंड सम पिक्चर related to your content. So this is your task. Pronunciation, vocabulary, voice modulation according to that. This way we see comparison picture again. Body language. So I just simply type on Google body language and you can select a picture according to your content and you can paste. So this way you can make your presentation attractive and meaningful कि आप कैसे दिखाना चाहते हैं, और उसके लिए पिक्चर कैसे इंसर्ट करना है यू ऑलरेडी नो, हाउ टू इंसर्ट स्लाइड यू ऑलरेडी नो, हाउ टू ऐड कंटेंट यू ऑलरेडी नो, राइट नाउ। और क्या आपको डाउट्स आ रहे हैं वो आप मुझे बताइए, आई विल हेल्प यू। पर उसमें कंटेंट कैसा ऐड होगा, क्या करना है, वो आपके ग्रामर कोच और फ्लुएंसी कोच आपको बताएंगे। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आपको अपना खुद का इनपुट डालना है उस पर। You know, you already have grammars module, ready-made module, but it's your talent और creativity कि उसको आप कैसे दिखाएंगे। आप सेम कॉन्सेप्ट तो यूज करेंगे, रूल्स तो नहीं बदलने वाले हैं, राइट? सेम वही यूज करना है, पर यू कैन चेंज योर एग्जाम्पल्स। सो उसके लिए आप एक अपनी पीपीटी बनाइए एग्जाम्पल्स की। जैसे IDQ इंस्टीट्यूट में बहुत सारे ग्रामर कोच है, पर सबका एक फेवरेट ग्रामर कोच होता है, राइट? क्यों वो आपका फेवरेट है या वो क्यों आप उससे कनेक्ट हो पाते हो? क्योंकि उनकी टीचिंग स्टाइल अलग है दूसरों से, कुछ तो अलग कर रहे होंगे, मे बी द वे दे आर एक्सप्लेनिंग दैट इज डिफरेंट। सो वैसे ही आपके पास कंटेंट तो है, बस कंटेंट को आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं दैट इज इम्पोर्टेंट एज अ कोच। वो हमें एक दूसरे से अलग बनाएगा, ओके कि आप अपनी क्रिएटिविटी कैसे यूज करके उस चीज को प्रेजेंट करेंगे। जो बेसिक्स है एज अ कोच, आपको बैठना कैसे है, आपका एटलीस्ट यहाँ पे 4 फिंगर का गैप्स तो होना चाहिए, नॉट मोर देन दैट। ऐसे नहीं दिखना चाहिए, सिट स्ट्रेट। और मैं अगर ऐसे अपना लैपटॉप रखती हूँ तो अब मुझे लग रहा है, दिख रहा है कि मैं डायरेक्ट स्क्रीन पे देख रही हूँ, बट मेरा भी लैपटॉप थोड़ा नीचे रखा है। और अगर मैं आप लोगों के पिक्चर्स, आपके रिएक्शन पे ध्यान दूं तो मुझे ऐसा दिख रहा होंगे कि मैं ऐसे देख रही हूँ, मेरी आंखें नीचे है, राइट? क्योंकि आई एम लुकिंग ऑन योर फेसेस, कि मैं अभी सोनी को देखूंगी तो मैं ऐसे देख रही हूँ, अगर मैं नवेद को देख रही हूँ तो ऐसे, प्रतिभा को देखूंगी तो मेरी आंखें थोड़ी नीचे आएगी। वो भी हमें एज अ कोच मेंटेन करना है कि हमें सबके रिएक्शन भी कैच करने कि हमारा किसको क्या समझ आ रहा है। एज अ कोच हमें वैसे वो भी देखना है, हमें सिर्फ अपने कंटेंट डिलीवर नहीं करना है, हमें लोगों को समझ आना चाहिए, राइट? ड्रेसिंग पे आपको काम करना होगा अपने, कि यू शुड बी लुक प्रेजेंटेबल ऑलवेज। और व्हेनेवर हम स्क्रीन पे हैं, हमारा इतना पोर्शन दिखना चाहिए, शोल्डर पर, because we have to use our body language while explaining, right? So ये shoulder portion make sure आपके elbow दिखने चाहिए। और whenever you use your hand gesture, जैसे सर ने भी आपको बोला था कि don't go too close to your camera this way, ऐसे बोल बोल के आप बात करें, नहीं, you can use here and you can speak like this also, okay? यहाँ से आपके hand gestures आपको दिखने चाहिए। एंड द प्रॉपर सेटअप, आपका ये जो पूरा बैकग्राउंड है ये दिखना चाहिए। अब बैकग्राउंड सेट करने के लिए हम एक सेपरेट सेशन ले लेंगे, आज आपके डाउट्स क्लियर करते हैं, ओके? सो ये सारी चीजों को एज अ कोच आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वी हैव टू लुक प्रेजेंटेबल, राइट? Yes. Yes, any doubt regarding how to make presentation, PPT, how to share? और जूम पे हम सेपरेट सेशन लेंगे, डोंट वरी। मैम तो अपना इंट्रो में जो अपना नाम देना है, सिर्फ नाम लिखना है, तो उसमें पिक्चर्स लगाना जरूरी है बिना पिक्चर? नाउ अब हमें क्या करना है, अब मुझे ये देखना है कि मेरे स्लाइड्स आए कैसे स्लाइड्सों पे, ओके? सो इस स्लाइड में आप लोगों को दिख रहा होगा एक टाइटल, बॉडी लैंग्वेज, एक पिक्चर और उससे रिलेटेड कुछ
डिटेल्स बॉडी लैंग्वेज से, यूज जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, दिस। ओके, नाउ मुझे ऐसा चाहिए कि ये बॉडी लैंग्वेज पहले आए, so I can use animation. So you can see tabs, different tabs here, right? And you can see that this animation here in your PowerPoint. Open your PowerPoint first, then go to animation. Animation क्या करता है, यहाँ पे number of animations दिए हैं which we can use for entrance. Entrance में क्या, जो green color के आपको दिख रहे होंगे, इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि आपको स्टार्टिंग में कैसे एंटर करेगा, कोई भी कंटेंट पिक्चर विजिबल कैसे होगा। जस्ट लाइक फ्लाई इन, इफ आई क्लिक ऑन फ्लाई इन, तो देखा बॉडी लैंग्वेज आया कैसे स्लाइड में, फ्लाई करता हुआ। सबको ये दिख रहा है कि नहीं? यस और नो? यस मैम। ओके, ये दिख रहा है कि फ्लाई करता हुआ, Yes, ma'am. एंड यू कैन गेट हियर इफेक्ट ऑप्शन। No, ma'am. मैम एनिमेशन में जाने के बाद क्या click करें? Entrance. Entrance. आपको ये मेरे पूरा स्लाइड दिख रहा है कि नहीं? Yes, Yes. ma'am. दिख रहा है ना? हाँ, विजिबल तो है। तो एनिमेशन में जाने के बाद आप कोई सा भी, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो एनिमेशन में कैसे जाएंगे? व्हेन यू क्लिक सम कंटेंट, ओके, जब आप क्लिक करेंगे तब आपका एनिमेशन वाला पैनल ओपन होगा। अगर आपने कुछ भी क्लिक नहीं किया है तो देखो ये कलर इसके फेड हो गए हैं, आप कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ स्क्रीन पे कुछ भी सेलेक्टेड नहीं है। सो वेन एवर फर्स्ट यू सेलेक्ट समथिंग जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे दिख रहा है स्क्वायर बॉक्स सेलेक्टेड, नाउ योर एनिमेशन पैनल इज विजिबल टू सेलेक्ट। इफ नथिंग इज सेलेक्ट तो वो फेड हो गया, आप अब यहाँ से कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर सकते। सपोज मैं चाहती हूं कि ये जो मैंने सेलेक्ट किया है मेरा कंटेंट, ये आए स्प्लिट होके। सपोज आई क्लिक ऑन स्प्लिट, तो ऐसे टूट के आ रहा है, देखा, दो भागों में, लेफ्ट टू राइट, फिर वो स्प्लिट होके जुड़ा। अब यहाँ पे इफेक्ट है, तो मैं चाहती हूँ कि हॉरिजॉन्टल स्प्लिट हो, ऊपर से नीचे ऐसे आए, आ रहा है ऊपर से नीचे। नाउ वो हॉरिजॉन्टल Yes. आउटवर्ड हो। यहाँ इफेक्ट में आप चेंज कर सकते हो, वर्टिकल आ सकता है, वो वर्टिकल आ रहा है दिस वे। सपोज ये बॉडी लैंग्वेज को मैंने क्लिक किया, सेलेक्टेड, मैंने फ्लाई इन कर दिया, अब वो नीचे से आ रहा था, मैं इफेक्ट पे गई, मुझे चाहिए कि वो बॉटम से आए, तो फ्रॉम बॉटम, इधर लेफ्ट बॉटम से आ रहा है, तो आप जैसा उसको लाना चाहते हैं यू कैन सेलेक्ट। टॉप से आएगा, टॉप से आ गया, यू कैन चूज योर इफेक्ट एनिमेशन। आई वॉन्ट कि वो राइट से आए, राइट से आ गया, ओके। इसके अलावा आप इसमें क्या सेलेक्ट कर सकते हैं, और आप टाइमिंग, ड्यूरेशन, यहाँ पे लिखा है स्टार्ट, यू कैन सी क्लियरली स्टार्ट, सो आपके क्लिक पे वो स्टार्ट होगा। ऑन क्लिक लिखा है यहाँ पे, सो व्हेन यू, और ये सारे इफेक्ट आपको कब दिखेंगे, स्लाइड शो में। सपोज when I click, oh, where is my, okay, that slide, on which slide, body language, right, 17. So here on the right hand side at the bottom you will see slide show, दिख रहा है ये बटन सबको, ये विजिबल है कि मुझे बताओ, ये किस लिए यूज होता है? ये भी स्लाइड शो है, बट द करेंट पेज, सपोज मेरे पास 30 स्लाइड का पेज है और मुझे जो 17 नंबर का स्लाइड है उसे ही स्लाइड शो करना है, तो मैं ये क्लिक करूंगी तो सिर्फ वही स्लाइड शो, वही पेज, करंट पेज ओपन होगा। लेकिन अगर मुझे स्टार्टिंग से मुझे स्लाइड शो करना है फ्रॉम माय फर्स्ट पेज, तो मैं ये जो टाइटल बार पे जो स्लाइड शो है ना, वो क्लिक करूंगी तो मेरा फर्स्ट पेज से स्लाइड शो होगा। क्लियर? तो समटाइम ऐसा होता है कि हम पढ़ाते पढ़ाते बहुत आगे चले गए हैं, एंड हमें क्योंकि जब बात करनी होती है तो हमें स्टॉप करके बात करना होता है। ये मैंने स्टॉप किया, नाउ आई एम टॉकिंग। सो अवर स्टूडेंट डोंट गेट लॉस्ट, वो स्क्रीन देखने लग जाते हैं, वो आपकी बातों को, आपके एक्सप्रेशन को कैसे सुनेंगे। तो वेन एवर यू वॉन्ट टू एक्सप्लेन समथिंग, स्टॉप शेयरिंग एंड देन टॉक, ओके, देन कनेक्ट।
मैम टाइम ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? स्लाइड स्लो, 4-5 स्लाइड है। Come to that. Okay, I'm coming. So this way we can use different slides. So here one thing I must say to everyone, just learn how to operate this all function and according to you, okay, आप कैसा चाहते हैं वैसे आप उसको मैनेज कीजिए. So when I click here, my body language here, see, ये आया. Now on second click, because वहां पे on click select है, तो जैसे मैं क्लिक करूंगी, on every click यहाँ पे सारे ऐसे 1 by 1, क्योंकि मुझे बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात करना है. Then I want to explain about body language. Then I again click. Then what is body language? Use your gesture. Then next facial expression. Then next movement naturally. This way I can use on click. Okay. And what about duration? वो आप पे डिपेंड करता है. बहुत एकदम टू स्लो भी नहीं होना चाहिए कि एकदम ऐसे धीरे 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 आ रहा है, राइट. और इतना भी फास्ट नहीं आ जाना चाहिए कि आपके स्टूडेंट देख ही नहीं पाए वो. तो इट्स अप टू यू कि आप उसको कैसा देखना चाहते हैं. तो ट्राई करके देखिए, गिव इट अ ट्राई टू ऐड एनिमेशन, बिकॉज when you practically perform, no, then only you understand better. Suppose उसके बाद मुझे, और 1 by 1 यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा होगा. आपने फर्स्ट बॉडी लैंग्वेज सेलेक्ट किया था, so this is your first animation, then second, third and fourth. So 1 by 1 that these all appear. जो भी उसमें बहुत सारे, अब आपको चाहिए कि वो अंदर आने के बजाय वो बाहर जाए. एम्फेसिस जैसे स्पिन करके आए, घूम घूम के आए. ये दिख रहा है आपको एवरीवन? ये इफेक्ट आपको दिखा? आपको लगा कि ये इस टाइप का होना चाहिए? वेट, तो सब अपने लैपटॉप में ये ओपन करें और प्लीज परफॉर्म. मैम ट्रांजिशन रह गया. ये एनिमेशन सबको क्लियर हुआ? ओके. Yeah. सो दिस वे यू कैन सेट एनिमेशन कि आपका हेडिंग पहले आना चाहिए, फिर 1 by 1 आपको कंटेंट ऐड करना है. दिस वे. एक चीज नाउ और है. लेट्स टॉक अबाउट ट्रांजिशन. ओके, just give me a minute, I'm sharing. What happened with Rajendra ji? Rajendra ji, are you here? Because again you ask permission to join. मैम Yes. एक चीज ये बताएं आप कि जितनी बार भी जैसे आप कोई स्क्रीन शेयर कर रही हैं हम्म और जब वो चीज कंप्लीट हो जाती है, जब आप सामने आती हैं, तो क्या हर बार में स्क्रीन स्टॉप करके मतलब शेयरिंग स्टॉप करके ही मतलब आती हैं, स्टॉप शेयरिंग करके? Yes. Every time I stop sharing. So that's why we need to practice more and more. So आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका एक हाथ आपके लैपटॉप के टच पैड पे है. You can easily move your hand and then you attend your student also. आप बात कर रहे हैं और आपको नेक्स्ट स्लाइड ओपन करना है, उससे पहले आपका यहाँ पे कर्सर शेयर पे चला जाना चाहिए एंड वो फाइल जो आपको शेयर करनी है वो सेलेक्ट हो जानी चाहिए. इसीलिए तो एक कंप्लीट टेक्निकल सेशन रखा है हमने कि प्रैक्टिस कर पाए इन सारी चीजों का, राइट. एक चीज, एक मैम एक चीज और रह गई. जैसे मान लीजिए किसी भी कंटेंट की हमारे पास में 10 से 12 15 स्लाइड हैं, ठीक है, और हम कुछ स्लाइड की बात कर चुके हैं बच्चों से, 5वीं 6ठी 7वीं. अचानक से स्टॉप शेयरिंग करने के बाद में
ये हमें याद आया कि मैं 7वीं स्लाइड को शेयर करना है, केवल 7वीं स्लाइड को, ठीक है, 7th स्लाइड को। हम्म, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम पीपीटी में जाके अपनी 7th स्लाइड को ओपन कर लेंगे, उसके हम्म। बाद में उसको शेयर करेंगे, या जब सारी स्लाइड शो हो जाएंगी बच्चों को, क्या होगा सब एक नहीं, बार तो वो आप जाइए अपनी पीपीटी में जाइए, ओके, और उसको स्लाइड शो, जैसे वो बॉटम वाला जो स्लाइड शो था, करंट पेज स्लाइड शो, बॉटम राइट पे जो स्लाइड शो था, वो आप ओपन कीजिए। नाउ आपका फुल स्क्रीन पे आपकी पीपीटी शो हो रही है। फिर गो टू दैट 3 डॉट, लेफ्ट साइड पे है 3 डॉट, स्क्रीन, आपका टास्क बार दिखेगा जिसपे आपका जूम ऑलरेडी दिख रहा होगा। गो टू योर जूम एंड देन अगेन शेयर। तो शेयरिंग स्क्रीन पे आपका वही वाला पेज शो हो रहा होगा जो आप शो करना चाहते हैं, योर 7th पेज। क्लियर? ट्राई देखते हैं मैं करके, एक बार कर- यू ऑलरेडी हैव योर पीपीटी, नो? ट्राई इट, ट्राई करके देखो। यस, एनीवन हैविंग एनी डाउट? Ma'am, I want your tree transition. Tree transition? You show me, na? Oh, okay, okay, Trees transition. okay. So let's talk about transition, okay? Let me open one PPT, then we will perform transition on that. Let's take that same PPT, but where is that PPT? Give me a minute, okay? Yes. Now my screen visible, everyone. दिख रहा है सबको? अब ट्रांजिशन का यूज No. हम Yes, कैसे visible. करते हैं? Why we use transition? कि आपका जो नेक्स्ट स्लाइड है वो अपीयर कैसे होगा। एनिमेशन हम तब यूज करेंगे जब आपको ऑन योर स्लाइड आपको कैसे एनिमेशन चाहिए, कि कौन सा कंटेंट कैसे आएगा, कौन सा पिक्चर कैसे अपीयर होगा। पर ट्रांजिशन व्हेन वी यूज कि हमारा वो स्लाइड ही कैसे आएगा। सपोज आई क्लिक ऑन हियर ऑन सेकेंड स्लाइड, ओके, मैंने सेकेंड स्लाइड पे क्लिक किया, मैं गई ट्रांजिशन पे। व्हेन आई क्लिक ऑन ट्रांजिशन टैब, I get many option here. You can see number of options, okay? So if I click on morph transition, we will talk about morph later. Let's fed, okay? Push this way. You can see your first slide, just push your second slide. Now I click on this, how my slide come, right? Push this way. If swipe, I click on swipe, then now when you slide so this way, right to left ये swipe हो रहा है, okay? This we have different, just a second, random bars this way, कि कैसा अपीयर होगा आपका नेक्स्ट स्लाइड। यू कैन क्लिक फ्लैश, ऐसा फ्लैश होके आएगा। सो ये एज अ फन एक्टिविटी भी आप करके देख सकते हो परफॉर्म, कि ये देखो, ये ऐसा नेक्स्ट व्हेन यू क्लिक ऑन स्लाइड सो तो ये कैसा आ रहा है, ये ऐसा अपीयर होगा, ओके। एक और था कर्टन शेड्स बन के आएंगे, ये ऐसे श्रेडेड होके जा रहा है। सो दिस वे इट्स लेकिन ऑन। ये 3rd स्लाइड में बहुत सारा कंटेंट पहले से तो लिख रखा होगा ना आपने मैम, मैं तभी तो आ वो रही शो हूँ हुआ। उसी पे। यस जी नावेद जी। सो मैंने कैसे बनाया ये स्लाइड? सो
using morph transition. That's why I told you कि morph transition के बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा. सो morph transition के क्या होता है, यहाँ पे सिंबल में ही आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारी चीजें ऑलरेडी आपके पास है और वो जब morph transition होगा तो ऐसे खुल के आती है. ठीक है, सबको morph transition का सिंबल दिख रहा है, राइट? तो मैंने ये स्लाइड लिया, मैंने इस पे एक बैकग्राउंड सेट किया, देन मैंने इंसर्ट किया है इस पे शेप, एक सर्कल बनाया है, मैंने इस पे कंटेंट ऐड किया है, की कम्युनिकेशन टेक्निक फॉर सक्सेस. ओके, यू कैन क्लिक, डबल क्लिक और करोगे तो भी आप कंटेंट टाइप कर सकते हैं, और यू कैन जस्ट सिंपली इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स. ओके, टेक्स्ट बॉक्स क्लिक करके ड्रैग कर सकते हो डायरेक्टली here and you can write this way. So this is two way to add your content. Now इसके बाद मैंने इसको you can simply click and control D से डुप्लीकेट कर सकते हो. अगर आपको सेम स्टेप चाहिए you can just click on whatever you want more. सपोज ये सर्कल मुझे और चाहिए थे, मैं सिंपली क्लिक करी, कंट्रोल D, इसका डुप्लीकेट बन गया. कंट्रोल D इज फॉर डुप्लीकेट समथिंग. ओके, सपोज मुझे ये कंटेंट का डुप्लीकेट चाहिए था, मैं सिंपली सेलेक्ट करूंगी कंटेंट, कंट्रोल D, मुझे इस कंटेंट का डुप्लीकेट मिल गया, एक और पेयर. दिस वे इफ यू वांट टू अनडू जस्ट क्लिक ऑन कंट्रोल Z, अनडू. नाउ यू कैन सिंपली ड्रैग एंड दूसरा ये शेप चेंज कर सकते हो, छोटा कर सकते हो. तो दिस वे मैं बहुत सारे मैंने ऐसे सर्कल्स ऐड किए हैं विथ कंटेंट. सिंपली मैं आपको ये ओरिजिनल वाला दिखाती हूँ. सी, इसके पीछे आपको बहुत सारे सर्कल दिख रहे हैं जिसमें कंटेंट है. ये आप कहाँ से कर सकते हैं, अब मुझे इन सर्कल को इसके पीछे भेजना है. ओके, सो व्हेन आई क्लिक वन सर्कल आई गेट वन option here, shape format. Okay, when I click on shape formatting I get few options like send back, send forward. send back मतलब कोई भी आपको पिक्चर, इमेज, टेक्स्ट अगर पीछे भेजनी है किसी पिक्चर के. so when you click on this send back, now you can send. see, दिख रहा है कि ये इसके अंदर चला जा रहा है, पीछे छुप जा रहा है, राइट? ये इसके पीछे नहीं छुप रहा है. Now I want this design to send back. So simply I click, go to shape format, click here, send back. Now see, चला गया इसके अंदर, right? This way I can send all my small circle inside. Okay, this way I can send all the small circles send back. Now अब ये इस पेज में मेरा ये फाइनल हो गया, बस में मैंने कुछ लिखा है. नाउ जस्ट सिंपली कॉपी दिस पेज एंड डुप्लीकेट इट. हियर यू कैन सी होम एंड हियर व्हेन यू क्लिक हियर यू डुप्लीकेट. ओके, जस्ट डुप्लीकेट. आपको स्लाइड में एक और स्लाइड दिख गई सेम. नाउ ऑन योर सेकेंड सेम स्लाइड, अब यहाँ पे आपको वैसा सेट करना है जैसा आप खुलने पे दिखना चाहिए. नाउ क्लिक ऑन एवरीथिंग एंड जस्ट ड्रैग. अब आपको यहाँ पे ये प्लेस कर दोगे कि आपको आपका फाइनल प्रोडक्ट कैसा दिखना चाहिए. मुझे ऐसा दिखना चाहिए कि ये फ्लावर के जैसा सा खुलता हुआ दिखना चाहिए. नाउ गो टू ट्रांजिशन ऑन योर सेकेंड स्लाइड, नो डुप्लीकेट करके जो रखे. गो टू ट्रांजिशन एंड क्लिक ऑन मॉर्फ ट्रांजिशन. सी, स्लाइड शो करके देखते हैं, खुल रहा है. तो जो भी आपने सेट किया था उसके अंदर वो यहां से खुल के बाहर आ जाएगा. यू कैन यूज मॉर्फ ट्रांजिशन लाइक दिस, जैसा कि इस पे किया है. कंटेंट लिखिए, आपको लगता है कि आपको अलग अलग बॉक्सेस नहीं बनाना है, कुछ अट्रैक्टिव बनाना है, यू कैन मेक लाइक दिस ऑल्सो. की कम्युनिकेशन के टेक्निक्स क्या क्या होते हैं, then when you click you will get these options. Okay,
नाउ दिस, वो एक डिजाइन था, ये दिस इज द सेकेंड डिजाइन. इट्स अप ऑन यू कि आप अपना प्रेजेंटेशन कैसे दिखाना चाहते हैं. तो ये जो बबल वाला बनाने से पहले मेरे मन में सिंपली ये था कि मैं बॉक्सेस में नहीं जाना चाहती, मैं ऐसे लाइंस में नहीं जाना चाहती, मैं चाहती हूँ कि एक आए ऐसे खुल के एक साथ सारा दिखना चाहिए. तो फॉर दैट I use that morph transition in bubble form. You can use any kind of shape, put your content, and you can use morph transition. Clear? Any doubt? Yes, नवेद जी, क्लियर है आपको कि morph transition कैसे यूज करेंगे आप? मैम जो टूल Clear, मैम ma'am. क्या Just give me a second, Pratibha. ओके Yes, Naved. मैम जो स्लाइड आपने वो करी थी डुप्लीकेट, वो मैम थोड़ा सा दिमाग से निकल गया, वो एक बार बता दो. Yes. Simply click on these slides. Okay. Not here. Not here. Click on this slide. Go to home, and here you will get one option, copy. When you click this arrow, you will get two options, copy and duplicate. Okay, just click on duplicate and you will get another slide. And if you want to delete, just click, select. You can see that red border covered, that means that slide is selected. You can just simply delete from your keypad. You have one delete button, just simply click and delete. And one more thing, suppose you want to write some content but you don't want to show that content, so just simply click here, right click, you will get one option, hide your slide. Okay, click on hide slide. So ये फेड हो गया है कलर में, और यहाँ पे आपका सेकेंड नंबर का स्लाइड में क्रॉस हो गया. When you slide so, you will not get that slide. इससे पहले वाला स्लाइड मैंने हाइड कर दिया था, वो शो नहीं होगा. ओके, सो इफ यू डोंट वांट टू, आपको कंटेंट चाहिए वहां पे, क्योंकि आपको वो रेफरेंस के लिए चाहिए, आपको बोलना है, पर आपको वो शो नहीं करना है कि आपके पार्टिसिपेंट वो नहीं देख पाए. जस्ट सिंपली राइट क्लिक, यहाँ पे अनहाइड करने से वो वापस आ जाएगा, और यू कैन हाइड एंड अनहाइड योर स्लाइड. ओके, सपोज आपको 10 स्लाइड आपने बनाया है पर आपको सिर्फ 4 शो करने हैं, तो बाकी के 6 आप हाइड कर सकते हैं. ओके, और मैम ये Yes. दूसरा वाला बटन जो स्लाइड का है, वो इसमें कौन सा है, जैसे आपकी स्क्रीन पर? कौन सा? जैसे पहला पहला तो जो बिगिनिंग वाला है वो ऊपर है हाँ, इसके ये जो बिगनिंग वाला है, ये जो टीवी जैसा दिखता है, इसमें लिखा भी है स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग. ओके, या मैम, और वो अब जो यहाँ पे बॉटम में आइए, यहाँ पे बॉटम में लिखा है स्लाइड शो. राइट, स्लाइड शो नहीं दिख रहा मैम. यहाँ पे एकदम बॉटम में दिख रहा है. ओके, हाँ दिखा. डू वन थिंग, यहाँ पे आपको टैब टैब में दिख रहा है स्लाइड शो, यहाँ हाँ मैम ऊपर ये दिख. Yes, जी जी. क्लिक yes, ऑन ma'am. स्लाइड शो. ओके, क्लिक ऑन स्लाइड शो. Hmm. यहाँ पे आपको ऑप्शंस क्या क्या दिखे हैं? फ्रॉम बिगनिंग, फ्रॉम फ्रॉम करंट करेंट स्लाइड. स्लाइड. ओके, तो जी ये जो 2 बटन है, ये वही बटन है, वो शॉर्टकट दे दिया है आपको कि आपको टैब में फिर स्लाइड शो ओपन करके ना जाना पड़े. ये क्लिक करेंगे, आपका बिगनिंग से स्टार्ट हो गया. यहाँ पे 3 डॉट में आप एंड भी कर सकते हैं. ये क्लिक करेंगे करंट स्लाइड. ओके, यहाँ पे ये करंट ही था. सपोज मैं इस स्लाइड में हूं कोई से, हियर. अब मुझे ये स्लाइड शो करना है, आई कैन सिंपली क्लिक ऑन करंट स्लाइड, मेरा करंट स्लाइड ओपन हो गया. ठीक है, बट एक चीज का आप ध्यान रखेंगे, दिस इज फॉर एवरीवन, ऐसा आपको शेयर नहीं करना है स्क्रीन. ओके, कि आपके स्लाइड्स ऐसे दिख रहे हैं, ऐसा नहीं शेयर करना है. ऑलवेज स्लाइड शो में आप ओपन करेंगे, देन क्लिक ऑन शेयर एंड शेयर. यहाँ पे ये बहुत बड़े दिख रहे हैं, यू कैन सिंपली ड्रैग एंड इसको छोटा भी कर सकते हैं, दिस वे. Yes, anything else you want and I'm missing?
कुछ clear. ऐसा है जो, क्योंकि ये फिर ये वाला सेशन हम नहीं लेंगे, फिर नेक्स्ट सेशन हमारा जूम पे होगा। ओके, तो ये था कि फर्स्ट क्लास में हमने सीखा कि हाउ टू ऐड स्लाइड, हाउ टू ऐड कंटेंट, देन हाउ टू इंसर्ट पिक्चर्स। ओके, देन आज हमने एनिमेशन किया, आज हमने ट्रांजिशन किया कि आप लुक कैसे दे सकते हैं इफेक्टिवली आपके अकॉर्डिंग, कि आपको कैसा चाहिए, कि आपके एक क्लिक पे वो आना चाहिए, वो सारी चीजें। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास पूरे कंटेंट होने चाहिए कि आप कैसे दिखाना चाहते हैं। इवन फॉर दोज, आप ग्रामर अगर लेना चाह रहे हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट आपके पास स्लाइड्स हैं, पर आप अलग अलग एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हैं कि आपने एक लाइन में पहले लिखा इनकरेक्ट, फिर देन यू विल आस्क, देन नेक्स्ट में आप कंटेंट वहीं लिखिए, एनिमेशन ऐड कीजिए कि आपके क्लिक में उसका राइट आंसर आ रहा हो। राइट, ऐसा आप अपना स्लाइड बना सकते हैं। यस, एनी डाउट और एनी क्वेश्चन? Madam, are there any other aspect except animation and transition? अदर एक्सपेक्ट एज इन